Hello, my dear students. Your class 12th is going to start, I guess. Summer, it has already been started. We are going to start with electric charges and electric field. So before going to get into the electric field, let's have a brief idea about gravitational field and gravitational potential. In case of a solid sphere, means Earth, where mass distribution is uniform, that means density is constant. In that case, what is gravitational field and how to find gravitational potential inside, outside, and on the surface too. So gravitational field has equivalent with acceleration due to gravity. First, you used to know about acceleration due to gravity, G is equal to gm by r square. Then later we got to know about that gravitational field. Gravitational field on the surface of Earth. Let this is distance r and mass is. So gravitational field on the surface of Earth is equal to G capital M by r square. Correct? Is that clear? Not visible, I guess, right? So that means here on the surface it is G capital M by r square. Correct? If you will be interested to find a point outside at surface, let this is a point outside, so E outside, so that is equal to gravitational field outside Earth surface G, let this distance is r, students, from the center of the Earth, G capital M by small r square. The total distance from the center of the Earth we have taken as r. Let we'll be taking a point inside Earth, this distance is r. So what is the gravitational field inside? Gravitational field, we're symbolizing it. What is inside? Students, for this, for the point inside, we can't consider all the mass. We have to consider the mass enclosed by this part. So let the mass enclosed is small m. So we can write G small m, don't get confused, small m by r square, right? And somehow we are interested to replace this smaller and capital R. We want to use capital M. What will be if अगर ये अर्थ है और इसका पूरा मास m है और रेडियस r है, कैपिटल m और स्मॉल m को हम रिप्लेस करना चाहते हैं by will be replacing by instead of small m, right? फ्रेंड्स देखो कैपिटल M जो है उसमें कितना वॉल्यूम में मास फैला हुआ है, that is 4/3 pi capital R cube, right? Pura sphere, solid sphere, mass is uniformly distributed, density is constant, right? So that's why mass is equal to 4/3 pi r cube. अगर जितना पार्ट हमने लिए, छोटा सा मास कितने वॉल्यूम में है, उसका रेडियस हमने क्या लिए, स्मॉल r लिए है. कंपेयर कर सकते हो आप. अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे स्मॉल m बाय कैपिटल M, so do you guess 4/3 pi, 4/3 pi cancel, so that is r cube by r cube. So small m, see here, we can write small m as uh, r cube by r cube into capital M. Can't we write? So if we'll be replacing, अगर ये जो इनसाइड वाला पैरामीटर हमने लिए थे हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, so ये E inside, that means we can write E inside by replacing, we can write also G by r square था पहले से. अभी हम क्या किए, स्मॉल m को कैपिटल M से रिप्लेस किए, that means m r cube by capital R cube. कैंसिल हो गया. So that means you got gravitational field inside solid sphere, that means earth, in terms of capital M is going to be G m r by r cube. Is that clear to all? Just see once. This is gravitational field inside earth surface. This is gravitational field outside earth surface. This is gravitational field on the surface of earth, right? Is that clear? G m by r cube. GMR by R cube, right? Is that clear? So students, gravitational field, see once more, gravitational field E is equal to dV by dr, rate of change of potential. Potential क्या है? आपको याद है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, ठीक इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट मास, टेस्ट मास जो लिए थे हमने, और ये डिफरेंशियल फॉर्म में E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर कैलकुलस मेथड पे. तो अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो डीवी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, E डॉट डी आर, राइट? अगर कहीं पे हम पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट मीन्स ये लिखा जा सकता है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर. एंड एक simple thing, we want to find potential inside earth surface. What is the potential inside earth surface? That means we have to integrate
ई डॉट डी आर। और स्टूडेंट देखो, इनसाइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to a point is known as potential of that point। और हम infinity इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले infinity से सरफेस तक लाना पड़ेगा। infinity to surface we have to bring, then from surface to this r we have to bring, that means we can split it, right? E dot dr integration from infinity to r on the surface plus, अभी इनसाइड में होगा ये, E inside is equal to dr, that is from r to small r। और E आउटसाइड का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, जी एम बाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर डी आर प्लस ई इनसाइड का क्या फॉर्मूला आया स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, जी एम आर बाई आर क्यूब, राइट, जी एम आर बाई आर क्यूब डी आर। अभी लिमिट स्मॉल आर टू, सॉरी कैपिटल आर टू स्मॉल आर, जस्ट सी वंस। लेट्स सी, अब इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट सी वन सेकंड, देन वी विल कम टू दिस साइड। एक बार देख लीजिए, यहां से कर लेते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा स्पेस है। जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम को बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन है -1/r, राइट, और लिमिट इंफिनिटी टू आर प्लस जी एम बाई आर क्यू को बाहर ले लेते हैं, जी एम बाई कैपिटल आर क्यू, आर डी आर का इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इज दैट क्लियर टू ऑल? देन विल डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दिस साइड, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, एक बार आप ऐसे देख सकते हो इधर, नहीं तो यहां पर कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा स्पेस है, देखो यहां पर आ जाएगा, देखिए एक बार हायर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट वाला तो जीरो है, 1/r, सो दिस विल बी माइनस जी एम बाई आर, करेक्ट, प्लस देखिए यहां पर जी एम बाई आर क्यूब, जी एम था बाय आर क्यू, टू को बाहर ले आते हैं, टू आर क्यू आ गया बाहर, और यहाँ अंदर में रह गया एक बार हायर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये देखिए माइनस जी एम बाई आर है, दिस इज माइनस जी एम बाई आर, दिस इज जी एम बाई टू आर क्यू, और हम ये चाहते हैं कि जी एम बाई आर क्यू को कॉमन लाए, वी वांट टू ब्रिंग जी एम बाई आर क्यू, वी वांट टू टेक कॉमन, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जी एम बाई टू आर क्यू को कॉमन ले आते हैं, जी एम बाय टू आर क्यू को कॉमन लिया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर तो आ गया जी एम बाई टू आर क्यू, और यहाँ पर हम क्या है, ये माइनस जी एम बाई आर था, और हम माइनस जी एम बाई टू आर को कॉमन, देखिए यहाँ पर जी एम बाई आर था, तो कितना रहेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो थोड़ा, जस्ट सी प्रॉपरली, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो कितना कॉमन रहेगा अभी, आर क्यू था क्या, आर क्यू नहीं था ना, हमने आर क्यू कॉमन लाया नीचे से, तो ऊपर में एक आर क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, जस्ट सी इट वंस, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आर था स्टूडेंट्स, ये लिमिट जो था ना यहाँ पर आर था, सो इट इज कैपिटल आर, राइट, जस्ट सी इट, हमने माइनस कॉमन लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर आर क्यू था और हमने यहाँ पर आर क्यू लिए नीचे से, तो एक्स्ट्रा एक आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक टू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट विजिबल? देखो, सो दिस इज टू आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था बट फिर भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना रहेगा, प्लस हो जाएगा ये, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडरस्टूड? आर था यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर टू आर क्यू क्यों किया हमने, क्योंकि टू आर क्यू कॉमन लिए, एक ऊपर में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और एक टू भी मल्टीप्लाई किया जो कि नहीं था। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ध्यान से, टू टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे माइनस जी एम बाई आर ही आ जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया इसलिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन ये होने वाला है माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब, राइट, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टूडेंट पोटेंशियल इनसाइड, अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल इनसाइड की, ध्यान से देखो, अगर हम पोटेंशियल इनसाइड की बात करेंगे तो वी इनसाइड कितना आया हमारा, माइनस जी एम बाई टू आर क्यू, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो ध्यान से, वी कैन राइट हियर वी इनसाइड, एक मिनट, पूरा चीज रखते हैं यहाँ पर, देखो एक बार आप लिख सकते हो, तो फाइनली वी इनसाइड का एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट्स माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब
3r² माइनस r², करेक्ट स्टूडेंट्स। अगर हम पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अर्थ की बात करेंगे, जब अर्थ के सेंटर तक जाएंगे तो ये आर क्या होने वाला है, आर इज गोइंग टू बी जीरो। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, वी एट सेंटर, सेंटर मतलब ये होता है कि आर इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो वी सेंटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, अगर ये नहीं रहा तो माइनस जी एम बाय 2r³ इंटू 3r², एक कैंसिल हो गया, राइट। सो दैट इज वी सेंटर is going to be minus gm by 2r। ध्यान से देखो, this is gravitational field inside, that is gravitational field outside, inside, and this is gravitational field inside, outside and the surface। और हमने ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे निकाले, and then how we found out the potential at the center और सेंटर ऑफ अर्थ, माइनस 3 है यहाँ पर, ठीक है ध्यान से देखो, -3gm/2r, दैट इज इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड अर्थ। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? हमने इनसाइड वाला लिए, एम को यहाँ पर पुट किए, जैसे कैपिटल एम लिए थे यहाँ पर भी लिए थे। सो दिस इज बी सेंटर। इज दैट क्लियर टू ऑल? हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड due to a solid sphere, that is earth, and the same phenomenon we are going to use when we will be studying electrostatic, how to find potential, gravitational potential for a solid sphere inside and on the surface of the earth, and inside outside, that is minus gmm by, that we already know. Is that clear to all? Just see and see, is there any mistakes, right? Just note it down. Thank you.